کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. علماء تو کہتے ہیں یہ اکیڈمی سے بھی نہیں نکلتا اور بندے اس کے اپنے سوال بھی اس کے اپنے، اس طرح کی کوئی بات دیکھی آپ نے؟ بات نہیں، بہادر بندہ ہے. اچھا، تو الحمدللہ اس کے ساتھ پروٹوکول اللہ کا پورا ہے الحمدللہ انشاءاللہ. تو یہ تو بڑی سخت باتیں تھی، کیونکہ ان کے علماء تو جو پروپیگنڈا کرتے سچی ہیں. باتیں تو سختی ہوتی ہیں نا، کڑوی بھی ہوتی ہیں، اب ہر کسی کو ہضم بھی تو نہیں ہوتی ہیں. ایسے ہاں کا لگ رہا تھا ایسے کہ ہم ان کے پاس نہیں، انہوں نے ہمیں بلایا تھا ایز اے مہمان کے طور پہ. پہلے ہمارا ناشتہ، پھر اچھے طریقے سے بٹھایا، فوٹو سیشن، ساری جو ہمارے ڈاؤٹس تھے وہ سارے کلیئر کیے. انجینئر صاحب کی کون سی باتیں تھیں جو آپ کو اٹریکٹ کر گئیں؟ یہی کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اطاعت کریں اور فرقہ واری نہیں کرنی ہے، صرف مسلم بن کے رہنے ہیں. کب سے سن رہے ہیں ان کو؟ یار سن تو 2-3 سال سے تھا، لیکن دل لگی جو ہے نا 2-3 مہینے سے ہو. کون سی والی دل لگی؟ میاں والی تو نہیں؟ نہیں الحمدللہ میں شروع سے ہی اہل حدیث میں رہا ہوں، تعلیم بھی اہل حدیث والوں نے حاصل کیا، لیکن اہل حدیث کی جو مرزا صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں وہ مجھے اہل حدیث والوں نے نہیں بتائی. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات انجینئر صاحب کو لازمی بتائیے گا تو سنتے ہیں کہ میں آپ کو امان کی بات بتاتا ہوں کہ یہ میری کعبے میں کھڑی ہوئی دعا ہے جو میں نے ان کو سنا ہے. ملاقات ہو گئی، ملاقات ہو گیا، فوٹو اور ویڈیو میں پیسے پورے ہو گئے پیسے تو سوچے نہیں کتنے لگنے کتنے نہیں، یہ تھکاوٹ دور ہو گئی. تھکاوٹ دور ہو گئی. ہم کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ، تو سیدھا راستہ تو انہوں نے بند کیا، تو اب جا کے عقل کھلتی ہے. جب سیدھا راستہ بند ہوتا ہے نا تو انسان کو کتنے راستوں میں سے گھوم کے منزل کی طرف پہنچنا پڑتا ہے. تو باقی ادھر دیکھ لیں، پارکنگ بھی فری ہے، گاڑی کی حفاظت بھی ہے اچھی، اور اس کے بعد ہم نے ادھر جوتے دیے ہیں، ٹوکن بھی اس کے دیے ہیں، انہوں نے ہم سے کوئی پیسے نہیں لیے دوسری جگہوں آپ پہ. سے اس لیے نہیں لیتے جنہیں سب مسئلہ اٹھاتے ہیں نیچے سے کارنے سونے کے. علماء تو کہتے ہیں اس کا اخلاق بھی نہیں ٹھیک. نہیں ماڑا علماء تو ایسی ہی ہے بس. وہ تو جیسا بول دیا اس کے جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے میرے حساب سے. ہمیں بتاتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شیخ. اگر یہ نعرہ نہ ہوتا تو مجھے کبھی بھی تعارف نہیں ہونا تھا. رسول اللہ کے بارے میں لوگ باتیں نہیں کرتے تھے، ایسے ان کو جادوگر نہیں کہتے تھے، ان کو باتیں نہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو سچ ہے وہ آج پوری دنیا میں ہے. اور آج میں واقعہ سنتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ مجھے بھی قرآن ترجمے سے پڑھنے سے منع کیا گیا تھا. منع کیا گیا تھا؟ بالکل منع کیا گیا تھا. اچھا، آپ نے نہیں پڑھنا، اچھا صرف آپ سنیں، آپ دیکھیں، اس کو صرف آیت تلاوت کریں. لیکن کسی نے یہاں سے ان سے سوال کیا ہے کہ جو حافظ ہو اور وہ قرآن بھول جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی سخت وعید ہے اس کے لیے، اور احادیث کی روشنی میں مجھے پتہ یہ بات کا ہے. میرے دادا ابو صاحب کی جو ہے نا دربار شریف ہے. میرے ماموں صاحب جو ہے نا وہ بھی گدی نشین تھے. دوسرے جو ہے نا وہ بھی عامر صاحب ہیں. اچھا، میں پیروں کی لاد میں سے ہوں. علماء کرام بزرگان دین اور ولیاء کے بارے میں کوئی اڑ رہے، کوئی کیا کر رہے، لیکن انجینئر تو آپ کو کیا لگتا ہے نہیں اڑتے تھے؟ کہ اگر میں زندگی میں ان سے پہلے چلا جاؤں تو میرا اگر جنازہ یہ پڑھا دیں تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. وہ تو مسلک کا ٹھیک نہیں ہے وہ بندہ، کیونکہ میرے دل دماغ میں یہ بات شعور کے طور پہ ڈالی گئی تھی یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھ لیں ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، لوگوں کے سوالوں کو ٹائم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایسی باتیں جو بھی واقعہ انہوں نے میاں والا سنایا ہے، اب ایسا واقعہ کو اس کو کیسے بیان کریں، کیسے ڈیفینڈ بھی کہہ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے، بیان کیا کریں گے، ڈیفینڈ کیا کریں گے. پھر ایک دن ایسا ہے کہ میں نے کہ یار گالی دے کر میں نے کہا کہ یار لعنت بھیج، کیا یار ہر وقت یار یہ بندوں کو یہ گند کہتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہے، تو غلط ہے. یار یہ اکیلا صحیح ہے. کہ جن کے سامنے پہلے کام کرتا تھا نا تو وہ کہتے نہیں اس بندے کو چھوڑ دو، یہ قادیانی ہے، یہ کافر ہے، یہ نہیں، یہ مسلمان کو بہکاتا ہے. پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا.
क्या वजह बहुत फर्क पड़ फूक गया। में दम नहीं रही है, इकरारुल हसन की बस फूक ज़्यादा इकरारुल हसन की जो है वो बड़ा पीरियड हो गया ना, इकरारुल हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JLM अकेडमी फरहान कुरैशी। जैसा कि आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हाल में हो चुकी है ख़त्म। हाल में आए हुए लोगों से कुछ बात करते हैं। तो जी आइए सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अदनान। अदनान भाई किधर से आए हैं? लाहौर से, वाघा बॉर्डर से। वाघा बॉर्डर से। जी जी। कितने लोग आए हैं? हम 3 लोग आए हैं। अच्छा। और मेरा बहनोई है, एक मैं हूँ और एक मेरे बहनोई का दोस्त है। कैसे तारुफ हुआ इंजीनियर साहब का? ये मेरे बहनोई हैं जो इनके पास यानी कि आते थे। वो पहली दफ़ा, वो पहले भी आ चुके हैं, वो मैं पहली दफ़ा आया हूँ। अच्छा। लेकिन इनको नेट पे ही सुना था ज़्यादा, और आज इनको हकीकत में सुना, तो माशाल्लाह मज़ा आया। मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं पहले खुश था और इनको जब से इनको सुना अब मैं खुश हूँ। पहले क्या था? पहले जमात मेरी मसलन के किसी ठिकाने का नहीं था, किसी दरबार पे, कभी किसी दरबार पे, यानी कि किसी जो समझते हैं कि आप जिस हवाले से ही ज़्यादा टॉपिक करते हैं उस हवाले का मैं इंसान था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की जो ऐसा रास्ता नज़र आया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुरान हदीस के मुतल्लक से उनकी रोशनी में ज़िंदगी का हर पहलू चल रहा है। अच्छा, आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं? जी जी। आज आपने अपनी आंखों से जो देखा अकेडमी का माहौल, इंजीनियर साहब का बोलना चालना, आवाम से बिहेवियर। जी जी। उलमा तो कहते हैं ये अकेडमी से भी नहीं निकलता और बंदे उसके अपने सवाल भी इसके अपने, इस तरह की कोई बात देखी कोई है ऐसी आपने? बात नहीं, बहादुर बंदा है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ अल्लाह की प्रोटोकॉल अल्लाह का पूरा है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो मिल के आए अंदर इंजीनियर साहब? जी, इस्लाम लेके आया हूँ। किसी अपने जो आप जिस मकबा फ़िक्र से थे, जी जी। किसी बड़े उलमा को मिलना इतना ही आसान था जिस तरह इंजीनियर साहब मिल रहे हैं बैठ के? नहीं नहीं। क्यों? ये समझ लें कि उनकी मोहब्बत और प्यार है और उनके अंदर एक जज्बा जो कि किसी से डरने का नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो यही जज्बा जो इंसान के लिए काफ़ी है। अच्छा, उनके अंदर मोहब्बत प्यार जज्बा को नहीं था, वो लोगों से मिलते नहीं है, उनको जान का खतरा होता है? वो तो जान का खतरा होता है ना। अच्छा, उनको, अच्छा। उनको तो भाई वो क्या उसका नाम, पहले 75 बंदों को मिलो तो फिर जाके उनको मिलना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि इनके साथ तो मिल के ऐसा हुआ है जैसे मैंने किसी अपने भाई से मिला हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? अमजद अली। अमजद भाई किधर से आए हो? लाहौर से। आप भी लाहौर से? जी। आज लाहौर से काफ़ी बंदे हैं। बिल्कुल, मेरे 2 दोस्त के साथ आए लाहौर से। माशाल्लाह। और भी हैं, और भी ऐसे बंदे हैं, कोई शादरा से है, कोई आगे मुझे पीछे? मिले लाहौर से कम मेरे साथ कुछ 6-7 लड़के और थे लाहौर से। अच्छा अच्छा। कैसे आना हुआ? अली भाई से मिलने। अली भाई से मिलना। इनका तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ? इनका तारुफ तकरीबन मुझे 13 मंथ पहले हुआ था और एक दोस्त ने करवाया था। अच्छे अल्फाजों में अली भाई का तारुफ हुआ, फिर स्टडी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया अली भाई से। इससे पहले कौन सा मकबा फ़िक्र था आपका? अहले सुन्नत। अहले सुन्नत देवबंद से या बरेलवी से? बरेलवी। बरेलवी से। अच्छा, इंजीनियर साहब की जब आपने बातें सुनी हैं तो ये तो बड़ी सख्त बातें थी, क्योंकि इनके उलमा तो जो प्रोपेगेंडा करते हैं। बातें तो सख्ती होती ना, कड़वी भी होती हैं, अब हर किसी को हजम भी तो नहीं होती। इसलिए बस अली भाई की बातें सख्ती समझने वाली थी और अल्हम्दुलिल्लाह समझा। अब घर वाले रह गए हैं समझने वाले, उनको समझा रहे हैं इंशाल्लाह। मना तो हमें नहीं करते, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते, दुआ करते हैं उनके लिए कि वो भी समझ जाएँ और इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ इसी रास्ते पे चले, इंशाल्लाह जन्नत में इकट्ठे जाएंगे। फिर इंजीनियर साहब को जब आपसे आप सुन रहे हो, जी जी, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है? सारी सी बातें हैं। कोई ऐसी कोई परेशानी कोई शेयर करना चाहो? सबसे ज़्यादा बिज़नेस में कि जिनके साथ मैं पहले काम करता था ना, तो वो कहते नहीं इस बंदे को छोड़ दो, ये कादियानी है, ये काफिर है, ये नहीं, ये मुसलमान को बहकाता है। तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया। अल्लाह हो। इंजीनियर साहब को पास रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरा अपना काम है इंटरनेट का, और मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे उससे अच्छी जगह पे लगाया है, मेरा काम बेहतर चल रहा है। फर्स्ट टाइम आयो आज? जी आज मैं कैसा था आज का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, जो सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा था। अली भाई उससे ज़्यादा स्वीट हैं, उससे ज़्यादा अच्छे हैं, मिलने के अखलाक, बात करने के अखलाक, लाइव देखकर तो मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और सलाम अलैकुम। क्या नाम है भैया?
محمد फरीद फरीद भाई किधर से आए हो? लाहौर से। आप भी लाहौर से इकट्ठे हो? नहीं नहीं, हम दो ही करते हैं। अच्छा, दो और भी हैं लाहौर से? आज तो पूरी गाड़ी भर के जा काफ़ी सकते ज़्यादा लाहौर से। हैं माशाल्लाह। लाहौर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे स्टूडेंट जो है ना इंजीनियर साहब के स्टूडेंट इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मजीद भी हो जाएगा। बेशक जी इंशाल्लाह। अच्छा, कैसे आना होगा? बस उस्ताद जी को शुरू से देखने का मन था, तकरीबन ठीक है। साल हो गया मुझे, ठीक है। हो गया, मैंने सुना, मैं मुतासिर हुआ, उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं जाऊंगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा ख्वाब था वो मेरा पूरा हुआ। इससे पहले कौन सा मकतबा फ़िक्र था आपका? मैं बरेलवी अहले सुन्नत। बरेलवी। तो जब बरेलवी उलमा के पास बैठते होंगे वो तो कहते होंगे कि इंजीनियर कादियानी और वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं, जी वही जो नेगेटिविटी इंजीनियर साहब के बारे में फैलाई हुई है। तो फिर कैसे सुनने का शौक पैदा हो गया? क्योंकि उन्होंने तो दिमाग ख़राब किए हुए बस होते हैं। एक आयत सुनी थी अमार बिन यासर वाली, उसके अल्लाह बाद से अकबर। उस्ताद जी को सुनना शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सुन रहे हैं और इंशाल्लाह अपने आने वाली नस्लों को भी इंजीनियर साहब को बताएंगे। अच्छा, जब सुन लिया इंजीनियर साहब को ये जो जितनी भी नेगेटिविटी थी, ये जो लोग उलमा फैलाते थे, उसके बाद उनसे काउंटर जाके क्वेश्चन किया कि यार आपने तो ये कहा था, ये कहा था, ये तो कोई नहीं निकले? वो विद द पैसेज ऑफ टाइम करते भी रहे हैं और अभी भी करते रहते हैं। उनसे पूछते हैं कि यार आपने हमें इस तरह बताया था, ये तो इस तरह, नमाज का तरीका आपने हमें किस तरह बताया, हम तो इस तरह पढ़ते हैं। अब जिस तरह हमने कुरान और हदीस में पढ़ा है, हदीस में पढ़ा है, जैसे नमाज का तरीका हम तो वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होता। वही जो कहानियाँ कि जो है वो हनफी में थे, ये इसमें थे कि ये इस तरह नमाज का तरीका नहीं था इनको। इसका मतलब ये जान के करते हैं? जान के, हाँ, रोंद पाने ना खेडांगे ना खेडने बस खेडांगे ना खटावांगे, हाँ। विच बसूड़ी पावांगे। आज फर्स्ट टाइम आए हो? जी। आज कैसा रहा आज का प्रोग्राम और अपनी आंखों से क्या देखा अकेडमी में? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को आज देखा आपने? जैसा उलमा कराम के बारे में सुना था, देखा था, उसके बरक्स ही पाया इंजीनियर साहब को। उनका यहाँ ऐसे यहाँ का लग रहा था ऐसे कि हम उनके पास नहीं, उन्होंने हमें बुलाया था एज ए मेहमान के तौर पे। पहले हमारा नाश्ता, फिर अच्छे तरीके से बिठाया, फ़ोटो सेशन, सारी जो हमारे डाउट्स थे वो सारे क्लियर किए। इंशाल्लाह ज़िंदगी नहीं नहीं गर्म की कोई नहीं। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कौन है जी? वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या नाम है? मोहम्मद इखलाक। इखलाक भाई किधर से? ये कोटा पिंडी रावलपिंडी। आप रावलपिंडी से। कितने बंदे आए हो? 2 बंदे हैं, मैं और मेरा कज़न से। अच्छा, ये बताएं इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? पॉजिटिव था, सोशल मीडिया से ही था। सोशल मीडिया पे उनको देखा, सुना और अभी कब रिसर्च सुना? कर रहे हैं। ये तकरीबन साल 2 साल तकरीबन हो गए हैं। अच्छा, तो फिर मुलाकात का भी शौक था, इनसे मिलने का और इनसे मोहब्बत। इससे पहले कौन सा मकतबा फिक्र था? सुन्नी बरेलवी? सुन्नी सुन्नी बरेलवी होते हैं ना, सुन्नी जो बंदी भी होते हैं। फिलहाल तो अभी मुस्लिम ही हैं माशाल्लाह। अभी भी सर्च कर रहे हैं, जैसे जैसे तो देखेंगे, सर्च करेंगे उस हिसाब से जो है ना। इंजीनियर साहब की कौन सी बातें थी जो आपको अट्रैक्ट कर गई? यही कि एक अल्लाह और उसके रसूल की बात की इताअत करें और फिरका वारी नहीं करनी है, सिर्फ मुस्लिम बन के रहनी है। ये इनकी बात बहुत अच्छी रही है। ठीक होगा। आज पहली दफ़ा है आप? आज पहली दफ़ा है। आज जो आपने अकेडमी में देखा, इंजीनियर साहब को लाइव सुना, उलमा के जो इल्ज़ामात भी हैं इंजीनियर साहब को, तो कहते सुनते नहीं हैं, गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सब क्या क्या बोलते हैं? क्या देखा आज आपने? नेगेटिव करते हैं, वो गलत बोलते हैं, वो नेगेटिव करते ये हैं। जो बंदे आए हुए हैं ये इंजीनियर साहब के अपने होते हैं? कौन से बंदे? ये जो अवामुन्नास है, ये काफ़ी सारे लोग हैं, वो तो इल्ज़ामात है ना कि भाई ये बंदे इसके अपने होते हैं, सवाल भी अपने होते हैं। रिसर्च करने के लिए आते हैं, कोई मोहब्बत के लिए आते हैं, तो इस लिहाज से जो है ना हक सच की बात करते हैं, इसलिए तो इतनी नेगेटिव बात हो रही है इनकी। मुलाकात हुई है? मुलाकात हो गई है माशाल्लाह। किसी और भी बड़े आलिम दीन को मिल सकते हैं इस तरह? नहीं। अच्छा, नहीं कोई मिले, मुलाकात? पहले भी नहीं मिले, पहली बार मिले तो जी सबसे मिले। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये देखिए, हाँ जी, और बोला जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? क्या ले खैरियत है, शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है भाई? शहजाद। उर्दू बोलिए पंजाबी? नहीं, पठान है, उर्दू बोलता हूँ। पठान है, माशाल्लाह। किधर से आया? कराची से। कराची से? हाँ। अच्छा, स्पेशल आए हैं या काम आया था? स्पेशल, रात को पहुँच जाता इसी के लिए खास। और कौन सा साथ? बस अकेला आयो। माशाल्लाह। हाँ। कब से सुन रहे हैं इनको? यार सुन तो 2-3 साल से था, लेकिन दिल लगी जो है ना 2-3 महीने से हो। कौन सी वाली दिल लगी? मियाँ वाली तो नहीं? नहीं, असल में जो लोग बोलते थे ना कि ये कादियानी, तो हमारा नफरत था। हमने कहा यार ये तो मुल्क को मतलब इस्लाम के खिलाफ है। एक रात इत्तेफाकन देख रहा था तो सुभान अल्लाह, बस दिल ले गया।
कौन सा टॉपिक था आपको याद है? बहुत है मेरे पास सारे नहीं पढ़े नहीं हुए। नहीं, जिससे दिल ले गए वो यही वाला कि टॉपिक कौन सा? उलमाए किराम बुजुर्गान दीन और वलिया के बारे में कोई उड़ रहे कोई क्या कर रहे लेकिन नहीं, इंजीनियर तो आपको क्या साहब लगता है नहीं उड़ते थे? इंजीनियर साहब जब पहलू सहाबा किराम से दिखाते तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा उन्होंने सख्ती तकलीफें दर्द ये गुजारे। हमारे वाले जो है ना और पहलू है तो मज़ा नहीं आया फिर उससे। अच्छा, अच्छा। इससे बहुत दिल नहीं तो इससे मुतमईन क्या हुआ। साबित हुआ कि ये लोग झूठ बोलते रहे, वो नहीं कराते रहे? हाँ, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत उनसे बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह इसको आबाद रखे, बहुत अच्छे हैं उनसे। उनमें मतलब और सिस्टम है, इसमें ये डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आए आप पहली दफ़ा, जी। आज आपने इनको पहली दफ़ा लाइव सुना, आज आए बिल्कुल कैसा live। लगा? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत दिल को सुकून मिल गया। वो उस बात तो कहते हैं इसका अखलाक भी नहीं ठीक। नहीं माड़ा उलमा तो ऐसे ही है बस, वो तो जैसा बोल दिया बोल दिया, इसके जैसे तो हो ही नहीं सकते मेरे हिसाब से। हालांकि मैं खुद इसके बहुत खिलाफ था। क्या करते, गालियाँ शालियाँ निकालते? हाँ ना, अच्छा। मतलब जो भी बोलता हम भी शुरू हो जाता था, लेकिन जब से सुना ना बस मैंने तौबा नहीं, मैंने कहा माशाल्लाह ये जैसा बंदा मिलेगा ये तो नसीब से मिलते, लेकिन कोई इसका कदर किधर जानते, तब जानेगा जब वीडियो देखेगा। वीडियो नहीं देखेगा ना हमारा तरह आदमी हवा में फायर कर। तो इसीलिए उलमा कहते हैं ना वीडियो नहीं, इसको सुनना नहीं, इसको देखना नहीं, उनको मना किया हुआ है। मैं खुद देवबंदी हूँ। अच्छा। समझ गया, हमारे को भी यही ज़हन बना हुआ था कि भाई इसको ऊपर ये आपको और जगह ले जाए, लेकिन जब हकीकत में एक रात देख लिया ना उसके बाद इसके अलावा भी मैं दूसरा सुनता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सब सुने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस जैसा नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन? वालेकुम सलाम, क्या नाम है भैया? क्या नाम है भैया? मैं अब्दुल वहाब है। वहाँ भाई किधर से हैं? मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से अकेले आए हैं? जी, ये 7 कज़न है इसके साथ। 2 बंदे जी, 2 बंदे। स्पेशल मिलने आए हैं जल्दी साहब? स्पेशल 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, कोई मौका नहीं मिला था, तो अल्लाह ने मौका दिया है मुझे साहब से मुलाकात। नहीं, मौका क्यों नहीं मिल रहा था? गाड़ी नहीं मिल रही थी? नहीं, गाड़ी तो मेरी थी, लेकिन बस को टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम नहीं मिल रहा था, सही है, काम सही। वगैरह थे बिजी थे। लेकिन मिर्ज़ा साहब को सुनते रहे, उनको फॉलो करते रहे इंशाल्लाह, तो चल अल्लाह ने मुलाकात भी करवा दी। इनको कब सुना पहली दफ़ा? तारुफ कैसे था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? 6 साल पहले मैंने उनको सुना था। अच्छे लफ्ज़ों में, बुरे लफ्ज़ों में? अच्छे लफ्ज़ में सुना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से ही अहले हदीस में रहा हूँ, तालीम भी अहले हदीस वाले भी हासिल किया, लेकिन अहले हदीस की जो मिर्ज़ा साहब ने जो बातें बताई है वो मुझे अहले हदीस वालों ने नहीं बताई है। अहले बैत के बारे में उन्होंने छुपा के रखी है बातें। वो तो है ना उनके अंदर, वो तो बुक्स रखते हैं ना, मामू के पीछे है ना वो मामू के पीछे है बिल्कुल। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुझे मिर्ज़ा साहब नहीं, तो फिर पूछा था अहले हदीस वालों से, पूछा था कि आपने ये क्यों नहीं बताया? किया कैसे, लेकिन वो जवाब नहीं देते। उनसे पूछना 2812 जो है ना, मैं वो उनसे पूछता हूँ, लेकिन उसका जवाब नहीं मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। मेरे जो खुद टीचर है उसका जवाब ही नहीं देते मुझे। अच्छा, आज फर्स्ट टाइम आए? यार पहली बार अकेडमी का माहौल आज पहली दफ़ा देखा, इंजीनियर सबको लाइव पहली दफ़ा देखा, कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बने। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। चल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन? सलाम अलैकुम भैया, क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम मुज़फ़्फ़र जिलानी है। जी जी, मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरे साथ ये मेरे एक दोस्त हैं और मेरे कज़न हैं। हम तीनों आज ना इंजीनियर साहब को देखने के लिए, मिलने के लिए आए हैं। इंजीनियर साहब को देखने के लिए और मिलने के लिए। कब से सुन रहे हैं इनको? मैंने 2020 में जब उम्रा किया ना, उससे पहले मैं एल सुना था और सारे उलमा को सुनता था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात इंजीनियर साहब को लाजमी बताइएगा। तो सुनते हैं कि मैं अमान की बात बताता हूँ कि ये मेरी काबे में खड़ी हुई दुआ है जो मैंने इनको सुना है। अच्छा अच्छा, क्या दुआ थी? मैंने कहा या अल्लाह कि मैंने सबको सुना है, मुझे सही रास्ता दे दे, कि कोई ऐसा जो दिल को समझ भी है और दिल को लगे भी उसकी बात सच्ची। और ये मेरी काबे के मताफ में खड़ी हुई दुआ थी कि मैं जब उम्रा करके आया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। फिर मैंने आके इनको सुना, तो इनके बारे में कहते थे थोड़े सख्त हैं, बियॉन्ड द लिमिट बोल जाते हैं, लेकिन जब मैंने सुनना शुरू किया तो जो बातें दिल को लगी, फिर कुरान को समझा, इनसे मैंने तौहीद सीखी, जो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि मेरी आखिरत में ना निजात का बायस बने। तौहीद मैंने इनसे सीखी। मैंने जो इनसे सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो मैं कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने इनसे तौहीद सीखी है। और जिसको तौहीद आ जाए उसके लिए मेरा ख्याल है कि कुछ रहता नहीं पीछे। ऐसे ही है। बात ये है कि सख्त बातें और नरम बातें इससे कोई लेना देना नहीं, बात रसूलुल्लाह की है तो बात सारा आंखों में। बिल्कुल। और बात यह है कि जो बातें करते हैं, देखें ये रसूलुल्लाह के बारे में लोग बातें नहीं करते, ऐसे उनको जादूगर नहीं कहते थे, उनको बातें नहीं, ठीक है ना। तो जो सच है वो आज पूरी दुनिया में है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 5-6 अरब आबादी है तो उसमें मुसलमानों की आबादी रसूलुल्लाह की वजह से ही है। बेशक ऐसे है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इनको सुना है।
تو میں تو یہ آپ سے میں نے فائنل الفاظ یہی کہے ہیں کہ میں اگر ایک میرے دل کی خواہش ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ اگر میں زندگی میں ان سے پہلے چلا جاؤں تو میرا اگر جنازہ یہ پڑھا دیں تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. مطلب یہ ایمان کی ایک بات ہے. جی ایسے ٹھیک ہے. تو یہ اور فیملی کا کیا اسٹیٹس ہے؟ ان کو دعوت دی، سمجھایا؟ وہ سب بدل گئے ہیں ماشاءاللہ، سب بدل گئے ہیں. دیکھیں یہ جو بات حق ہے وہ حق ہے سمجھ. اور اچھا اس میں ایک اور چیز میں نے سیکھی ہے کہ جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو جو آپ اللہ سے اس کی مدد مانگتے ہیں نا وہ آپ کو راستہ دیتا ہے. یہ چیز سیکھی ہے. ٹھیک ہے. قرآن نہیں سمجھ آ رہا، اللہ سے دعا کریں، وہ آپ کو راستہ دے گا. بے شک. آپ وہی جمعہ سننے جاتے ہیں، قاری صاحب وہی بتا رہے ہوتے ہیں وہی مل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ پہ یقین. بے شک. الحمدللہ فیصل آباد سے آئے ہیں. یہ بھائی بھی میرے پہلا ایکسپیرینس تھا، پہلی دفعہ آ جائے. کیسا رہا ایکسپیرینس اکیڈمی کا؟ الحمدللہ. انجینئر صاحب کو لائیو سننے کا اچھا ویڈیوز میں تو دیکھا. الحمدللہ. اچھا انشاءاللہ تصویر بھی کھنچاتے ہیں ان کے ساتھ. بڑی وش ہے زندگی میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی، اس لیے. بہت شکریہ بھیا، جزاک اللہ. آئے جی. اور کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام محمد احمد. احمد بھائی کدھر سے؟ میں لاہور سے آیا ہوں. لاہور سے. آپ کتنے لوگ ہیں؟ میں اکیلا ہی آیا ہوں. اور بھی کافی سارے لوگ ہیں؟ نہیں میں آیا ادھر اکیلا ہی ہوں. اچھا نہیں، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں لاہور سے کافی سارے بندے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی گاڑی ہو، بندہ وہ بن جاتا ہے، ساتھ مل جاتا ہے. کیسے آنا ہوا؟ میں پشاور گیا تھا ڈاکومنٹس کروانے اپنے، تو واپسی پہ میں نے کہا کہ یہاں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. میں 3-4 سال سے سوچ رہا ہوں کہ جاؤں گا لیکن پلان نہیں بن رہا تھا. سن کب سے رہے ہو انجینئر صاحب؟ میں سن رہا ہوں 2017 کے اسٹارٹ میں، 16 کے آخر. منع کسی نے نہیں کیا؟ نہیں. اچھا. باقی سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تعارف نیگیٹو ہوا تھا. مجھے سننے کے بعد نیگیٹو تھوڑا بہت ہوا تھا، جب میں نے سنا تھا تو مجھے نہیں ہوا تھا. اور جہاں تک کہ بات گھر کی رہی ہے تو گھر کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ٹھیک لگتا ہے سنو. مطلب وہ چیز نہیں ہے ہمارے گھر میں کہ اس کو نہیں سننا. کٹرپن کسی قسم کا نہیں. جو بہتر لگ رہا ہے وہ کرو. ٹھیک ہے. شروع سے مطلب یہ تھا کہ ایک رخصہ اہل حدیث کی طرف سے شروع سے تو وہ چیز تھی نہیں کہ اس کو نہیں سننا اس کو نہیں سننا. وہ شروع سے یہی تھا کہ سب کو سنو، جو سمجھ آئے مطلب حدیث سے ملے جو ایک چیز عمل کرو. فرسٹ ٹائم آیا آج لائیو دیکھ لیا انجینئر صاحب کو. کیسا رہا آج کا ایکسپیرینس میرا اوورآل اچھا رہا. اوورآل اچھا رہا. مطلب میں جمعے کو فری ہو گیا تھا ڈاکومنٹس کروا کے، تو میں اب 2 دن اسی وجہ سے رکا تھا کہ اب چیک کرنے لگا تو پتہ نہیں کب لگنا ہے. تو آج لگا کے میں آج آیا ہوں ادھر اسپیشل. تو اب یہ ہے کہ واپس اب نکلنا. میں ملاقات ہو گئی. ملاقات ہو گیا. فوٹو اور ویڈیو میں پیسے پورے ہو گئے. پیسے تو سوچے نہیں کتنے لگنے کتنے نہیں. یہ تھکاوٹ دور ہو گئی. چلو جزاک اللہ. وعلیکم السلام. پہلے اپنا نام تو بتائیں. میرا نام محمد عمیر ہے. عمیر بھائی کدھر سے؟ فرام گجرات. آپ پچھلی دفعہ دفعہ میں 18 اگست کو آئے تھے. اچھا اب کیا بتائیں جی، کیا میسج ہے جی آپ کا؟ میسج یہ ہے کہ ہماری ساری یوتھ کو، جتنے بھی ینگ جنریشن ہے، ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں اکیڈمی. کم سے کم اگر کچھ نہیں نا، اگر نفرت بھی ہوئی تو حدیث تو سننے کو ملے گی نا، قرآن تو سننے کو ملے گا نا. یہ ماحول دیکھیں ضرور، ایک دفعہ آئیں اور کوشش کریں یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز پرچیز کریں ایسی جو دین کے ریلیٹڈ ہے. جیسے قرآن پاک ہے وتھ ترجمہ، احادیث ہیں، صحیح بخاری مسلم مشکات، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز لازمی پرچیز کریں، اپنے گھروں میں تلاوت کریں اور سب کے لیے دعا کریں. بقایا مجھے بس اجازت دیں، میں صرف اس میسج کے لیے آیا تھا. بہت شکریہ. آپ سب سے مل کے بھی بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ حسن شیراز. حسن بھائی کدھر سے؟ گجرات سے. اکیلے آئے؟ نہیں میرے ساتھ میرے دوست ہیں جنید. کیسے آنا ہوا؟ ہم نے انجینئر صاحب کی باتیں سنی ہوئی تھی بہت ساری ویڈیو پہ، اچھی بری، تو بہت اچھی باتیں ہمیں لگی ہیں ان کی، اور اس لیے ہم پھر ان کا دیدار کرنے آئے ہیں. سامنے بیٹھ کے ان کو سننے کا ایک خواہش تھی، وہ آج پوری کی گئی. پہلے کون سا تھا فرقہ اپنا؟ پہلے تو یہی ہمیں سننا تھا. تو مزید ان سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں بہت اچھی سیکھی ہیں. توحید کے بارے میں یہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت یہ اس پہ صحیح اپنا پرفیکٹ جواب دیتے ہیں کسی بھی بات کا. یہ مجھے چیز ان کی بہت اچھی لگتی ہے. اور دیکھ لیں ادھر بھی یہ کسی کو نہیں بولتے کہ دوبارہ آنا، یہ بولتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں نہ آئیں، ایک بار آ گئے ہیں بہت ہے، کیونکہ نیکسٹ ٹائم دوسرے لوگوں کو بھی موقع ملے آنے کا، کیونکہ پھر جگہ بھی نہیں ہوتی بیٹھنے کے لیے، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیچھے. تو باقی ادھر دیکھ لیں پارکنگ بھی فری ہے، گاڑی کی حفاظت بھی ہے اچھی. اور اس کے بعد ہم نے ادھر جوتے دیے ہیں، ٹوکن بھی اس کے دیے ہیں، انہوں نے ہم سے کوئی پیسے نہیں لیے دوسری جگہوں آپ سے اس لیے نہیں لیتے جنہیں سب مسلح اٹھاتے ہیں نیچے سے کارنے سونے کے، جی مسلح پیسے نکلاتے ہیں نا. تو
इधर ये बहुत अच्छा माहौल है। ये इधर कोई चंदा बॉक्स नहीं इनने रखा हुआ, और ये किताबें भी देती हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम है इधर, एक मसलन इल्मी सिस्टम है पूरा। मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हुई है, बहुत सुकून आया, अल्लाह का बहुत शुक्र है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन? सलाम अलैकुम भैया, क्या नाम है भाई? इरफान है। इरफान भाई किधर से आए? उकाड़ा से। उकाड़ा से अकेले आए? नहीं, ये भाई भी साथ। 2 बंदे। मुलाकात करनी थी इंजीनियर साहब से? जी बिल्कुल। या और भी कोई काम था? नहीं, वैसे इधर अटेंडेंस भी लगवानी थी। ठीक है। कब से सुन रहे हैं इंजीनियर साहब को? तारुफ कैसा रहा? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? तारुफ जरिए नेगेटिव ही था, 2.5-3 साल से सुन रहा हूँ। और ये भाई 1-2 वीक पहले आए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि बहुत अच्छा है। भाई इसको भी ले लेगा। आगे, अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद असदुल्ला। असद भाई जी जी। आपको नेगेटिव तारुफ था? नहीं, मुझे तो बहुत एक ना अच्छा हादसा हुआ मेरे साथ। अगर अली भाई का ये आगे आजा थोड़ा सा, क्या हमें बताते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शायद। अगर ये नारा ना होता तो मुझे कभी भी तारुफ नहीं होना था, क्योंकि मैं अली भाई को 2015 से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं वो दूसरे मसाइल पे सुन रहा था, इजी जो होते हैं शरा के मसाइल। अगर ये नारा ना होता तो मुझे आज हकीकत नहीं पता चलनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा। आज मैं जान चुका हूँ क्या हकीकत इस है। नारे की वजह से हकीकत आपके आगे खुल गई। हाँ जी। क्या क्या हकीकत खुली? आपने क्या चेंज देखा, क्या मुख्तलिफ पाया इंजीनियर साहब को और उलमा को? बेसिक वो और ही सवाल हो जाएगा। मैंने अभी जो देखा ना, अली भाई ने हकीकत हमारे सामने रखी है कि जो हमने तौहीद और रिसालत को मानना है, किस तरीके से मानना है, ये चीज़ ठीक होगा। अच्छा जी, आपको भाई ने तारुफ करवाया? नहीं, मुझे किसी और दोस्त के थ्रू हुआ था। ठीक हो गया। आज आए इनके साथ? जी आए इनके साथ। ये मौलदारी है हमारे। ठीक हो गया। एक्सपीरियंस आज पहले लाइव देखने का? पहली दफ़ा आया। वीडियोस में तो देखा होगा? जी, वीडियो में तो डेली देखते हैं। ठीक हो गया। आज एक्सपीरियंस लाइव का कैसा रहा? भाई बेहतरीन, मज़ा आया आज। लेकिन दोबारा को नहीं आने देना? दोबारा वही तो वो कह रहे थे कि दोबारा नहीं आना। नहीं, आ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो रूटीन से कहा जाता है ना, जो बंदे आते हैं 1-2 वीक छोड़ के आएंगे इस तरह। ठीक, चलो जज़ाकल्लाह भैया। हाँ जी, और माशाल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है? उमर है यार। उमर भाई किधर से हैं? लाहौर से। आप भी लाहौर से? भाई लाहौर से काफ़ी सारे बंदे हैं माशाल्लाह। चेंजिंग आ रही लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो चेंजिंग तो पहले भी आई हुई, आज इकट्ठे होके निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, लाहौर कौन सी जगह से आए हैं? समनाबाद से। समनाबाद से। कैसा तारुफ था इंजीनियर साहब का? नेगेटिव रहा, पॉजिटिव था, क्या था? इंजीनियर साहब का 2020 में जब कोरोना था तब मैंने इनको नेगेटिव तारुफ से सुना था। ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे लगा ये तो बंदा बात सही कर रहा है माशाल्लाह। जब दूसरी सुनी इस तरह, फिर आज 4 साल हो गए हैं तकरीबन, तो मैं मुसलसल सुन रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम अब इत्तेफाक हुआ आने का। 1 साल से मैं इरादा कर रहा था आने का, लेकिन आज अल्लाह की तरफ से वक़्त मुकर्रर था, तो वो ये हो गया उनके एक ज़रिया बने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सही रास्ता दिखाया, रफ़ी दैन से सुन्नत के साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। पहले कौन सा मसलक फॉलो कर रहे? देवबंद को फॉलो। देवबंद की हक़ानियत सामने आई, चीज़ें सामने आई, बिल्कुल बिल्कुल जो तज़ाद होता है। इतना प्रैक्टिसिंग नहीं था मैं देवबंद में भी कि मैं उनकी हर बात को फॉलो, मैं जो उनकी जो अकायद थे जो शिर्क से पाक थे उनको मैं फॉलो, लेकिन ये जो अंदर वाली बातें अशरफ अली तानवी वगैरह। और आज मैं वाकई सुनता हूँ, देखता हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मुझे भी कुरान तर्जमे से पढ़ने से मना किया गया था। मना किया गया था? बिल्कुल मना किया गया था। अच्छा, आपने नहीं पढ़ना। अच्छा, सिर्फ आप सुने, आप देखें, इसको सिर्फ आयत तलावत करें। तो लेकिन अब जब उनकी बातें सुनी तो इतनी हकीकतें, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब एक्सपोज हुआ है सारा कुछ, इस पूरा सिस्टम एक्सपोज हुआ है, ये सारे मसलक एक्सपोज हुए। हालांकि मेरी जो फैमिली सारी बरेलवी मसलक से है, ननियाल में, लेकिन मैं देवबंद में था पहले, मुझे वो लोग भाभी कहते थे। अच्छा, पहले भाभी क्या? 2 भाभी हैं। तो अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब मुस्लिम होना तो ये चाहिए था। इंजीनियर साहब बैठते हैं ना, हमारा एक चैनल है उस पर लाइव बैठते हैं, होना तो ये चाहिए था। जितना बड़ा नाम है इनके अपने उलमा का, देवबंद में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, लाइव बैठे हैं, लोगों के सवाल लें। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन देख लें, इनके पास तो टाइम ही नहीं है, लोगों के सवालों को टाइम नहीं है। जाहिर है कि वो अपनी ऐसी बातें जो भी वाक़या उन्होंने मियाँ वाला सुनाया, अब ऐसा वाक़े को उसको कैसे बयान करें, कैसे डिफेंड भी कह रहे हैं? सही बात है, बयान क्या करेंगे, डिफेंड क्या करेंगे? बाकी शुक्र अल्लाह का कि लोग चेंज हो रहे हैं, लोग बहुत से लोग मेरे जानने वाले हल्का अहबाब में अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं। पहले हम डरते थे इनका नाम लेते हुए लोगों के सामने कि हमें लोग ये क्योंकि इन पर देखो स्टैंप लग कादियानी कोई ग्रुप है, कोई पीछे से ऐसे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये तस्वीर ली है ना, अब इंशाल्लाह इसको अपनी
टीवी पे लगा देंगे। सर अब तो वो तो दौर गुजर गया, नहीं, वो खत्म मुश्किल हो गया। दौर गुजर गया, अब तो अच्छी बहा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो हम इन्हीं के ऊपर फिट होंगे, इन्हीं में से निकल के इनके ऊपर फिट होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ कौन कौन आया जी ये आज? मेरे बहन भाई हैं। अच्छा ये अच्छा मेरे भांजे हैं दोनों। अच्छा बच्चों, क्या नाम है बेटा? उमर। उमर। आपका? अबू बकर। अबू बकर। सर अच्छा, आप भी हो बच्चे? क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, माशाल्लाह। आपका? हाफिज़ एहसन तारिक। हाफिज़ एहसन भाई। अच्छा जी, आप बताएं आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था? जी मैं पहली दफ़ा यहाँ पे तशरीफ़ लाया हूँ जी। ठीक हो गया, कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, मुझे अपने बच्चों को ना ये तरबियत के हवाले से ना एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ से मुयस्सर हुआ है। मैं अपने बच्चों को अक्सर मस्जिद में, मदारिस में, उलमा की महफिल में लेके जाने का शाइक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इनकी दो बातों ने आज वो एक जैसे ना वो कहते हैं ना कि एक इंसान को झंझोरा है, तो समझे कि शायद मुझे भी उन्होंने झंझोरा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, लेकिन किसी ने यहाँ से इनसे सवाल किया है कि जो हाफिज़ हो और वो कुरान भूल जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो उन्होंने कहा जी ये तो बड़ी सख्त वईद है उसके लिए, और हदीस की रोशनी में मुझे पता है ये बात का है। लेकिन एक जो टीचर होता है ना इंसान का, वो इंसान के दिल से उसको ना हार्ट करता है कि भाई आपने ये काम किया हुआ है और आप ये काम भूल चुके हुए, तो ये काम अच्छा नहीं है। आज उनके इस लेक्चर में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये गलत काम है, सही उसको चाहिए कि उसको रिवीजन करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से इंशाअल्लाह ताला कि मेरा अल्लाह मेरे ऊपर रहमत करे, मेहरबानी करे, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह ताला मैं आज से ही नियत करता हूँ कि अपने कुरान पाक को मुकम्मल याद करने की, और मैं अपने बच्चों को भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरकीब की तरफ लेके आऊँगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने बच्चों को दीन की महफिल में और माहौल में लेके जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर बन जाएँ, ये इंजीनियर बन जाएँ, ये प्रोफेसर बन जाए, ये दुनिया की किसी भी अलूम फ़न के अंदर चले जाएँ, आखिरकार मौत के बाद ये किसी काम के इनके वाले नहीं। जो इनके काम आने वाली चीज़ है वो दीन है, और इस प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह 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 अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, अल्लाह इनकी उम्र में, अल्लाह ताला इनके अलूम में बेशुमार बरकतें अता कर रहे हैं। जो इनकी दूसरी चीज़ जो मेरे दिल में एक बड़ा खटका थी, मैं कल से दुकानदारी कर रहा हूँ, सारा रात में यानी कि जागता रहा हूँ कि मैंने सुबह कल मिर्ज़ा साहब के पास जाना है, तो मेरा क्या मकसद है वहाँ पे जाके? वो तो मसलक का ठीक नहीं है वो बंदा, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में ये बात शऊर के तौर पे डाली गई थी यार वो बंदा ठीक नहीं है। तो सारी रात मैं जागता रहा हूँ दिमाग में ये सवाल लेके कि मैंने करना क्या है वहाँ पे जाके। इल्म तो मैं मस्जिद में भी जाके हासिल कर रहा हूँ, मदरसे में भी जा रहा हूँ, मौलवियों की तकरीरें भी सुन रहा हूँ। दिमाग कह रहा है कि ना जाओ, दिल कह रहा है कि जाने में हर्ज क्या है। मैं सारी रात का जागा हुआ हूँ, सुबह लाहौर से गाड़ी निकाली है, ड्राइव की फजर की नमाज के बाद, स्टिल यहाँ पे आए हैं। किसी मजबूरी की वजह से रास्ते ज़रा ब्लॉक थे, और वो ब्लॉकेज की वजह क्या थी? अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पे उर्स शरीफ मनाया जा रहा है, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, सारी ट्रैफिक ब्लॉक है, जो एक मेन डेस्टिनेशन है। अच्छा देखें, हम कहते हैं कि सीधा रास्ता, तो सीधा रास्ता तो उन्होंने बंद किया, तो अब जाके अकल खुलती है। जब सीधा रास्ता बंद होता है ना, तो इंसान को कितने रास्तों में से घूम घूम के मंजिल की तरफ पहुंचना पड़ता है। तो ये आज ये समझ लें कि ये एक मुशाहिदा था यहाँ पे पहुंचना। अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये अल्लाह पाक तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये अकीदा ईमान पहले ही दिल दिमाग में मौजूद है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अपनी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। लेकिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जो रास्ता था ना, वो अल्लाह से दुआ मांग रही है, अल्लाह पाक फिर ऐसे रास्ते में चलाना फिर जिसके ऊपर तेरा इनाम नाजिल हुआ, फिर ऐसे रास्ते में मत चलाना जिसके ऊपर तुमने गुमराही वालों के मामलात को करके तो उनके ऊपर गज़ब किया हुआ है। सही होगा। अच्छा ये बताएं, आज आ गए, आपने कहा कि दिल सुबह रात का मैं जाग रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ जी, तो फिर आके कैसा फील किया? हाँ, इनके बारे में ना लोग अक्सर और मशाइख ये लोग कहते हैं ये बहका हुआ आदमी है, ये राह हक से बटा हुआ आदमी है, क्योंकि इनकी एक बात बड़ी मशहूर है, ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ इल्मी मजहबी इल्मी किताब, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो वो बात दलील से की उन्होंने माशाल्लाह। लोग इनके ऊपर बेशुमार फतवे लगा रहे हैं कि ये मसले के कादियानी को प्रमोट कर रहा है। जी ऐसे ही उसने वो मिर्ज़ा साहब ने डायरेक्ट बात कही, और भाई अगर ये कादियानी का लेक्चर होता तो मैं आपको प्रमोट करता, प्रमोशन देता, आपको चीज़ें देता, बांटता कि भाई हमारे लेक्चर, हमारी किताबें, हमारी असनाद, हमारी चीज़ें, जो कि वो लोग कर रहे हैं। वो तो कहता कादियानी दज्जाल, वो तो कहते हैं, वो तो कह रहे हैं। अब इतनी दलील के साथ अगर कोई बंदा करता है तो ये किसी मर्द मुजाहिद का ही काम है। मैं नहीं समझता कि कोई डरा हुआ इंसान, कोई बुज़दिल इंसान, कोई गीदर,
कोई इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से है, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इसमें मिर्ज़ा साहब की काबिलियत नहीं है, मैं आपको कह दूं। जी हमेशा से ये उनके अंदर की काबिलियत अल्लाह ताला ही अपने की बंदे उठाता तौफीक से है। ऐसे ही है। है। अल्लाह उनमें से किसी बंदे को चुन ले, जी, अल्लाह अपने बंदे जिसको उठाता चाहे है। चुन ऐसे ही, ले। ऐसे मैं समझता हूँ ये शर्फ मिर्ज़ा साहब के हिस्से में आता है कि वो दीन की इशाअत के लिए अपनी जान, अपनी माल और अपने मामलात की दरेग किए बगैर अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए कर रहे हैं। और वो एक बात बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, वो कहता हूँ भाई मैं आप ही के किताबों के हवाले दे के आपसे बात करता हूँ, अगर तो मैं गलत हूँ तो फिर आप आपकी किताबों के झूठा कह दें, और अगर मैं सही हूँ तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबाह करें, क्योंकि हमारी निजात अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के अलावा है ही नहीं, बिल्कुल सही है ही नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे वहाँ पे लाहौर शहर में आज उर्स मनाया जा रहा है 25 अगस्त 20 सफ़र, कल यानी कि पीर वाला दिन है। वहाँ पे शियों का भी इमाम बारगाह है, वहाँ पे गामे शाहों का भी जुलूस है। उधर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनको ये दाता साहब के नाम से आम मकबूल किया जाता है, ठीक है ना। अगर उनके भी मामला देखे जाएँ तो वो खुद भी यानी कि इस ताकत और सलाहियत के मालिक नहीं है। जैसे कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे जूतियों का स्टैंड 120 रुपये में लगता है और हमारे जूतियों के स्टैंड के भी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो तो दादा साहब बातें कहते हैं कि बम जो पकड़ लेते थे वो चोर, तो वो कह रहे कि वो पकड़ नहीं सकते। बड़ी रोशनाई वाली बात हो जो उन्होंने की है। अल्लाह करे कि ये बात दिल में उतर जाए और दिल से ज़िंदगी में उतर जाए, क्योंकि इल्म अमल के बगैर मुमकिन नहीं है ऐसे, क्योंकि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। मैं इसी के साथ आपसे रुखसत चाहूँगा। बारकल्लाहु खैर व हसनुल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह आपके इस चैनल को, इस छोटी सी जगह को अल्लाह वुसअत वाली जगह बनाए। आमीन आमीन। क्योंकि असल मकसद तो ये है ना कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कम मिन फ़ियतिन कलीलतिन गलबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। और अल्लाह ताला कितनी ही ऐसे मामलात हैं जो छोटी छोटी जमातें होती हैं, अल्लाह ताला उनको बड़ी जमातों के ऊपर गालिब कर देते हैं। मैं आलिम मुफ़क्की मुफ्ती नहीं हूँ, जो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दिया हुआ इल्म है मैं उसी के बारे में इंशाअल्लाह ताला आपसे भी कर रहा हूँ। ये एक वुसअत वाली जगह नहीं है, ये एक छोटी जगह है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी नेक्स्ट टाइम ना आइएगा। ना ये वजह नहीं है कि भाई मैं आइंदा से आपसे मिलना नहीं चाहूँगा या मैं आपके लेक्चर में आपको बुलाना नहीं चाहूँगा या मैं आपको देखना। वो कहते हैं कि नया शाइक है, नया बंदा है, वो भी इसी तरह देख के जाए, सुन के जाए, समझ के जाए, ताकि वो उसकी भी दिमाग की और खिड़की खुल जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भैया। अल्लाह इनको अपना इस्तिकामत दे और अल्लाह ताला इनको शैतान के उस गलबे से बचाए, इनमें अल्लाह ताला अना से इनको बचाए। आमीन। जज़ाक अल्लाह भैया, जज़ाक। हाँ जी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकिब अली। आकिब भाई किधर से आए हो? सर मैं मुल्तान शरीफ से आया हूँ। मुल्तान शरीफ से? जी जी। ओलिया के शहर से? ओलिया के शहर से सर। मैं खुद भी जो है पीरों की औलाद हूँ। मेरे दादा अबू साहब की जो है ना दरबार शरीफ है। मेरे मामू साहब जो है ना वो भी गद्दी नशीन थे। दूसरे जो है ना वो भी आमिर साहब हैं। अच्छा। मैं पीरों की औलाद में से हूँ। कोई करतब या कोई है करामत करके दिखाए ना जरा, हम भी देख लें आज पीरों की औलाद क्या करती है। कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता सर। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो इतने वो लिया है, वो सवा नेज़े पे भी, वो पता नहीं क्या क्या। वो तो मुल्तान तो गढ़ है ना सर, गढ़ है बड़ा बिल्कुल। हम तो उन्हीं की नस्ल में से हैं, पीरों की औलाद में से हूँ। नहीं तो अब तो कह रहे हैं कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो जो पिछले कर गए थे वो खास थे सर। वो कहानियाँ थी, कहानियाँ थी बस, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला सारा सब कुछ करता है। बेशक। अच्छा, कब से आपने इंजीनियर सबको सुनना शुरू किया और आपका जो बाप दादा का एक चल रहा था उसको साइड पे किया? परेशानियाँ तो आई होंगी, कोई शेयर करें सर। बिल्कुल सर, कोविड-19 था। मैं बड़ा गुनहगार हूँ, इंतहाई गुनहगार। मैं जब अपने अंदर देखता हूँ ना तो सर मेरे से ज़्यादा गुनहगार कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने मेरे पर्दे रखे हुए हैं। अगर मेरे ऐप आपको पता लग जाए तो सर आप मेरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। ठीक है ना, तो मैं इतना गुनहगार हूँ। उन दिनों कोविड भी हुआ, हमें ऑफिस से छुट्टियां भी हुई, 1 माह की तकरीबन छुट्टी हुई। तो सर मैं उसमें जो है ना रोता था, अल्लाह ताला दीन क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इतना गुनहगार हूँ, मेरे अल्लाह ताला गुनाह कैसे माफ़ करेगा? एक। दूसरा मैं कहता था यार ये अहले बैत कौन है? यार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है ना शहादत जो दी है, दीन भी बचा दिए। यार कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं। बस यही बात थी। अल्लाह ताला ने सुन ली, अल्लाह ताला ने सुना। फिर मैंने जो है ना एक क्लिप देखा इंजीनियर साहब का, उसमें था कि जो है ना कि पीर साहब जो है ना अपनी करामात दिखाते हैं और जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना हुजरा मुबारक से ना हाथ बाहर निकला और जो है ना कोई पीर थे
उन्होंने जो शेख ना रफ़ाई, वो हाँ, वाला शेख रफ़ाई वाक़या साहब जो, ने हाँ, उन्होंने चूम ना लिया। हाथ चूमा, हाँ, वो हाँ। ना 90,000 का मजमा था, इस तरह का जो है ना वाक़या था। मैंने कहा यार ये तो समझ नहीं आ रही, ये क्या बात है। फिर इंजीनियर साहब ने बताया। फिर दूसरा एक और मैंने सुना कि ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए जो है ना वो दरवाज़ा खुला, सही है, हज़रत उमर के लिए नहीं खुला, ऐसे ही है। उन्होंने इजाज़त मांगी थी। इसके बाद जो है ना फिर मैं सुनता रहा। फिर एक दिन ऐसा है कि मैंने कहा यार गाली देकर मैंने कहा कि यार लानत भेज, क्या यार हर वक्त यार ये बंदों को ये गंद कहता है कि यार ये तू गलत है, यार ये अकेला सही है। मैंने स्किप कर दिया, ख़त्म। उसके बाद खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से इनका क्लिप आया, क्रिएशन टू क्रिएटर, अल्लाह का तारुफ। सही है। बस उसके बाद मुझे जो अल्लाह का तारुफ हुआ है ना, बस अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, ऐसा ही है, कोई भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नत के मुताबिक नमाज़ भी पढ़ता हूँ माशाल्लाह। मेरे वालिदैन के कायद और नज़रियात भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो गए हैं। अच्छा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालिद साहब मेरे वालिद गद्दी नशीन थे? सर मेरे वालिद साहब गद्दी नशीन नहीं थे। अच्छा, लेकिन वो इन चीज़ों को ना मायूस में थी। कौन था आपका पीछे, मामू थे, कौन थे? सर मैं मामू थे मेरे। मामू थे, मेरे वो मामू कर रहे हैं अभी? एक मामू तो फोत हो गए, दूसरे जो है ना वो अपना निज़ाम चला रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सही हो गया। दावत रखो उनके आगे भी, उन्हें को बताए। और जो है ना वालिद साहब जो है ना इन चीज़ों को ना बहुत मायूब समझते थे। मैंने अपने दादा अबू की किताब वसीले शफात से उनका शिरक साबित किया सर। अच्छा, दादा अबू की किताब मैंने अपने दादा लिखा हुआ था सर, शिरक लिखा हुआ था, मैंने साबित किया है। अच्छा, कुरान और सुन्नत की तालीमात की नज़र किसको साबित किया, वालिद साहब को या अपने? मैंने अपनी वालदा को दिखाया। हाँ। मैंने अपने वालिद साहब को दिखाया, दादी अम्मा को दिखाया। मेरा कज़न आया बैठा था, वो अहले तशीयों का ऐसे समझ लें कि ना बहुत उनसे मोहब्बत अकीदत रखने वाला है। तो जो है ना मैंने जो है ना उससे भी दिखाया। भाईजान को पसीने आ गए, यार ये क्या दिख गए हैं हमारे बड़े। चलो अब तो हमारे फौत हो गए, दुआई करनी है ना उनके लिए। मैं तो करता हूँ बिल्कुल, बेशक मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि हो सकता है गलती हो गई होगी, बस हो सकता नहीं था ना। वफात से पहले उन्होंने तौबा कर लियो। उनकी दरबार बनी है, जाते हैं, बहुत कम जाता हूँ, ये नहीं कि नहीं जाता, जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ। अच्छा, परेशानियाँ मोल ले ली, मुखालफतें मोल ले ली, इंजीनियर साहब को आज मिल लिया, पहली दफ़ा मिला? बिल्कुल। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं रात को 11 बजे से घर से निकला हूँ, अकेला आया हूँ मुल्तान से। और जो है ना मुझे तंगी हुई है, बस ये लाहौर से यहाँ तक का सफ़र। अगर भाई ना होते तो जो है ना जिससे मेरा राब्ता रह गया है, अगर ना होते मुझे नहीं लगता था कि मैं यहाँ तक पहुँचता। अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ सका। बहुत शुक्रिया भैया। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मोहम्मद तबस्सुम। तबस्सुम भाई किधर से आए? कलर से ना, शुफ वाली सरकार के पास से। शुफ सरकार के बैत है, मुरीद है? नहीं जी। अच्छा, मैं तो वैसे पहले ही उनको गलत समझता था। अच्छा, पहले भी बखौल समझते थे? पहले भी मेरा उनसे कोई अकीदत नहीं थी। अच्छा, वो तो यार तो लोग पागल हैं, इतने दूर से आते हैं। कहाँ फ़र्क पड़ गया है? नहीं तो चलो अभी इकरारुल हसन ने, मैं कल अभी वहाँ से गुजरा हूँ ना, तकरीबन 300-400 तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी होती थी 2 किलोमीटर में। वही मैं कह रहा हूँ, तकरीबन 10-12 गाड़ियाँ थी टोटल। थोड़ी सी जगह है जहाँ पर वो भी कुछ करते हैं। क्या वजह? फूक में दाम नहीं रही है इकरारुल हसन की? फूक ज़्यादा इकरारुल हसन की जो है वो बड़ा पीरियड हो गया ना, इकरारुल हसन। अच्छा चले, मजाक तो अपनी जगह। ये बताएं इंजीनियर साहब का तारुफ कैसा हुआ? नेगेटिव जी। इनके बारे में क्या सुना? यही सुना था कि जब फेसबुक पे इनके सामने वीडियो आती थी ना, सुना था यार ये कदियानी है। आप कौन सा वक्त पे फिक्र फॉलो कर रहे हैं? बरेलवी। अच्छा, बरेलवी रहे कि भी शुफ को आप सही नहीं समझते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाल्लाह। असल में जिस बंदे का ज़हन इस तरीके का होता है ना, वो इंजीनियर साहब को फॉलो भी करता है। जो समझता है कि यार ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। क्या बात है, ज़बरदस्त बात की है, सही है, बिल्कुल सही कहा। तो मैं उसको वैसे भी सही समझता हूँ। अभी बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब को तारुफ हो गया है, लेकिन वहाँ नेगेटिव था। मैं समझता था कि ये कादियानी है। एक दफ़ा जो इनका तारुफ कराते हैं ना, अक्सर किताबों का खुदा वर्सेस बापों का खुदा, वो क्लिप, एक दफ़ा ये क्लिप मेरे सामने आ गया और उसमें वो कुछ हंसी मजाक करते हंस रहे थे। मैंने कहा ये हंस रहा है बंदा, पता नहीं किसको हंस रहा है। सुनते तो जैसे इन्होंने हवाले दिए ना बुखारी के, मुस्लिम के, मुझे शौक लगा है यार, बंदा को बात कर रहा है वो बुखारी मुस्लिम कादियानी, तो इसको नहीं मानते हैं। आपको पता था बुखारी मुस्लिम जानते थे किताबों को? मैं वैसे मैं जानता था इससे पहले भी कुरान की आयत। फिर जब मैंने उनके रेफरेंस चेक किए, मैंने कहा बंदा वैसे कह रहे सारे गलत है, लेकिन जो हवाले हैं वो तो ठीक दे रहा है। चलो बंदे को छोड़े, हम हवाले। अच्छा, चेक भी कर रहे थे साथ? हाँ, मेरे पास इस्लाम 360 थी। ये तकरीबन 3-3.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
अभी आज मैं थर्ड टाइम आया हूँ यहाँ पर। माशाल्लाह। दोस्त लाया हूँ इधर, पहले अकेला आया था, पिछली बार भी एक दोस्त को लाया था साथ, आज फिर एक दोस्त को लाया हूँ। हवाले निकलते गए और आप सुनते गए। बस मेरे फिर ये ख़त्म होगी बात कि अभी कादियानी और ये वो सब पता लगा ढोंग फ्रॉड। मुझसे कुछ है ना, मेरी तो स्टोरी तो डिफरेंट है। मैंने कभी किसी लड़ाई नहीं हुई है गाँव में, मस्जिद इमाम में, मुझे कुछ नहीं कहते, कोई भी कुछ नहीं कहता। मेरे अम्मी अबू, हम बरेलवी थे, ये दरबारों पे हलवे वगैरह ये आपको पता है ना। फिर जब मैंने उनको ये बताना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले मेरे मान गए, अम्मी अब्बू सिस्टर वाइफ। बस इंजीनियर साहब वाली बात है कि समझाना सिर्फ उन्हीं को पड़ता है ना, बाकी हम गायब गायब बात तो करते रहते हैं, लेकिन हमारा ये नहीं है कि हमने किसी को समझाना है। घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह सही कीदे पे आ गए माशाल्लाह। इंजीनियर साहब गैरुल्लाह को नहीं पाते हैं। ज़बरदस्त। इंजीनियर साहब के पास आज तीसरा चक्कर जी, कैसा रहता है हर दफ़ा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, इसलिए तो आया हूँ ना आज फिर आया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम। मोहम्मद आसिम। आसिम भाई किधर से आए हैं? मैं खारियाँ से। खारियाँ से, जी जी। खैरियत थी, कैसे आना हुआ? इंजीनियर साहब के लिए आए हैं, उनका बयान सुनने के लिए, लाइव सेशन देखने के लिए आए हैं आज। अच्छा, आपका पहले कौन सा मकतबा फ़िक्र, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे थे? पहले फ़िक्र देवबंद को। देवबंद को? जी जी। अच्छा, क्या बातें इंजीनियर साहब ने ऐसी बता दी कि जो देवबंद के उलमा नहीं बता सके? इनका सोशल मीडिया पे मैं इनको फॉलो करता हूँ, और दूसरा मेरा एक भाई था आतिफ, वो इनके पास बहुत आते जाते हैं। सही है। इनकी बातें जो कुरान और हदीस से जो बयान करते हैं, उसकी डिटेल में जो बात करते हैं वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये जो चीज़ इनकी बहुत अच्छी मुझे लगी है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। अच्छा, घर में यानी जो देवबंद को आप फॉलो करते थे या घर वाले फॉलो करते थे, सारे घर में चेंजिंग आ चुकी है, तब्दीली आ चुकी है? तकरीबन 90% आप कह सकते, 90 से 95% चेंजिंग आ चुकी है। अभी इंजीनियर साहब को हमारे घर में सब छोटे बड़े सब सुनते हैं। ठीक है। नमाज का तरीका भी चेंज हो गया अभी माशाल्लाह। मैं तो है 5-6 साल से ही नमाज जो है रफ़ल जदैन से ही पढ़ रहा था, तो बाकी भी जो है आस्ता अभी कर रहे हैं, उस तरह से चेंज हो रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट कह सकते हैं आपके चेंज हो गया सारा। आज फर्स्ट टाइम आए, आगे भी आए हैं? नहीं, पहले भी 2 दफ़ा मैं आ चुका हूँ। ठीक है, तीसरी दफ़ा मैं आया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।